Recording start. गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का सक्षम रोजगार सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है और आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम विक्की गौतम है और आज मैं आपका होस्ट हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी यहाँ पे बिजनेस एंड अकाउंट्स ट्रेनिंग की क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी ट्रेनिंग के पार्ट के रूप में आज की हमारी क्लास है हाउ टू यूज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम में एआई एक बहुत ही पावरफुल टूल बन चुका है जो हमें फास्ट काम करने, टाइम बचाने और नई स्किल सीखने में बहुत हेल्प करता है। आप लोग ऑलरेडी एआई यूज कर रहे हो जैसे गूगल, यूट्यूब, रिकमेंडेशंस। लेकिन आज हम सीखेंगे कि एआई को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाता है। और आज के सेशन को कंडक्ट करेंगे एडवोकेट अभिषेक, जो आपको एआई के प्रैक्टिकल यूज करने के बारे में गाइड करेंगे। और आज का सेशन जो लीड कर रहे हैं हमारे वो है सुभाष मलिक सर। So without taking much time, let's get started with today's session. So now I would like to invite Radha Arya ji for the brief introduction of our today's resource person, Mr. Abhishek. So over to you, Radha ji. Good evening, everyone. Mr. Abhishek is an advocate practicing before the Delhi High Court and various district courts in Delhi. Since being enrolled with the Bar Council of Delhi in 2023, he has developed a focused practice in criminal law, family disputes, negotiable instruments act, check bounce, recovery matters, and consumer and commercial litigation. He is deeply passionate about legal drafting and research, viewing them as the foundation of effective advocacy. He completed his LLP from Law Center 1 Faculty of Law and holds a BA Honours degree in Political Science from Kirorimal College, graduating with First Division. Abhishek proudly acknowledges the pivotal role of Saksham Bharti, whose regular scholarship supported his academic journey and fueled his pursuit of excellence. His career has also been shaped by the mentorship of Ms. Jyotika Kalra, President of Saksham Rozgar Society, SRS, who has guided him since the age of 14. Currently serving as the Office Secretary of Saksham Rozgar Society, he oversees the society's digital presence, from coordinating online sessions to managing social media and frequently leveraging, leveraging modern technology to enhance organizational efficiency. He strongly believes in using technology to make system more accessible and impactful. It's thank you everyone, and it's over to you, Abhishek ji, Vicky ji. Thank you, Radha ji. Now I would like to again invite you for the introduction of our today's lead person, Mr. Subhash Malik sir. Radha ji. प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं विक्की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज। चलिए मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आज हमारे मेक्स नो आज के डिफरेंस, जो वो हमारे करते हैं। लीड पर्सन जो हमारे सर हैं, हमारे सुभाष मलिक सर। सो इट इज माय प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस मिस्टर सुभाष मलिक सर। He brings 50 years of corporate experience in banking, finance, and facilitation. And he is associated with Citigroup for over a decade and with Saksham Bharti for nearly 2 decades. His client portfolio includes 100 plus MNCs, Indian brands, universities, and institutes. And he has facilitated learning for over 250,000 people across industry and academia. Through his framework, the three-dimensional analysis, three-dimensional of transformation, and the 5 eyes of personality, he guides people on a journey of self-discovery and personal growth. Please welcome Mr. Subhash Malik, sir. So now over to you, Mr. Abhishek, to begin the session. So thank you, Vicky Gautam ji, or thank you, Radha Arya ji, for the warm welcome and introduction. Or thank you to Saksham Roga Society and our president, Ms. Jyotika Kalra ma'am.
जिन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने जो मेरी स्किल्स हैं वो आपके सामने ला सकूं और आपको भी कुछ सिखा पाऊं। तो आज की जो क्लास है हमारी है हाउ टू यूज़ एआई। तो मैं चाहता इस सेशन का नाम हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी रख सकता था, बट चैट जीपीटी बहुत नैरो हो जाता, तो उसके लिए हम इसका नाम रखा है हाउ टू यूज़ एआई। तो आप एआई के बारे में जानेंगे कैसे यूज़ करना है इसको। थोड़ा सा हम स्टार्ट में थ्योरेटिकल देख लेते हैं एआई क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम आगे सेशन शुरू करेंगे। जब हम एआई की बात कर रहे हैं तो इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इसका फुल नेम बोले तो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंस एक आर्टिफिशियल है, यानी कि इसे क्रिएट किया गया है थ्रू मशीन। वो मशीन जो एक ह्यूमन के टास्क परफॉर्म कर सकती है। जैसे ह्यूमन हम एज अ बीइंग कोई अपनी कॉग्निटिव स्किल्स के थ्रू कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, अपने लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो ऐसे भी हमने मशीन को ट्रेन किया है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। वहाँ मशीन अपने लॉजिक्स को अप्लाई कर रही है। और ये लॉजिक्स कहाँ से आए? ये आए हैं थ्रू मशीन लर्निंग। जो जो डेटा है अवेलेबल अलग अलग जहाँ पे अलग अलग सोर्सेज से, ये सारा डेटा एआई को फीड कराया गया है और उसी का एक आउटपुट आप देखते हैं। तो अभी ऐसा क्या नया हो गया कि जो एआई अभी आया है? अगर आप एआई की बात करें तो एआई बहुत पुराने समय से चल रहा है। इसका टर्म 1920 में से शुरू हुआ है। और अगर आपने देखा होगा तो मूवीज भी बन रखी हैं लाइक टर्मिनेटर। मेरी फेवरेट मूवी है मैट्रिक्स, उसके अंदर भी जो रोबोट्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और आने वाले ऐसे कई भी मूवीज होने वाली हैं जो एआई के साथ बने। और कई लोग कहते हैं कि एआई इतना पावरफुल है कि वो ह्यूमन को ओवरटेक कर लेगा, लेकिन ऐसा अभी तो होने वाला नहीं है। तो उसके छोड़ते हुए हम इस पे फोकस करते हैं कि एआई से हम अपना काम कैसे करा सकते हैं। अभी तक एक नॉर्मल एआई जो चैट जीपीटी आया वो 2022 में आया, और उसके बाद से एक काफ़ी पॉपुलराइज हो गया। तो चैट जीपीटी का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं हर जगह पे, चैट जीपीटी। और इससे पहले भी हम यूज़ कर रहे थे लेकिन हमें पता नहीं था। लाइक गूगल लोकेशन हो गया, नेटफ्लिक्स पे जो रिकमेंडेशन आती हैं अगर आप खोलें तो आपको दिखाएगा रिकमेंडेड फॉर यू दी सोर्स। वो आपके एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। वो देखते हैं कि आप क्या क्या चीज़ देखते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते। ऐसे एआई ही जो है वो एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। और अभी एआई इतना अच्छे से इवॉल्व इसलिए हो पाया है क्योंकि अभी आपके पास इंटरनेट है। ऑफ कोर्स अगर ये आप क्लास ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास इंटरनेट है और आप रेडी टू यूज़ हैं एआई के लिए। आप कभी भी एआई को यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और आगे हम बात करें तो एआई जो है वो कैसे सब चीज़ें कर रहा है? वो है बहुत सारा डेटा अवेलेबल होने के कारण। हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास इंटरनेट है। तो डेटा बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये सारा डेटा एआई को फीड कराया गया है। और एआई यही करता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप बताता है एक तरीके से सारी आपकी कमांड्स को समझ के। लाइक अगर मैं एक पोएम बोलूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, तो आप अपने आप नेक्स्ट वर्ड आप क्या बोलेंगे? एनीवन? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल व्हाट? कोई जवाब देना चाहेगा? निकल तार हवाएं मंडल पटिया। बस बस बस, यानी कि आप सभी को ये पोएम अच्छे से याद है। तो ऐसे ही एआई को यस भी सर। वो सारे डेटा अच्छे से याद है। लेकिन एआई जो है वो अपने तरीके से सोचता है, उसके पास सोचने की जो कैपेबिलिटी है बहुत फास्ट है। वो इसलिए हो पाया है क्योंकि आज बहुत हैवी प्रोसेसर अच्छे खासे जो लेवल पे काम कर सके, बहुत स्पीड में काम कर सके, वो अवेलेबल है। तो अगर आप अभी हम इंडिया की जीपीटी जीपीटी के की बात करें जो कि आई थिंक 3 to 4 मिलियन के बीच में है, ठीक है, 3.5। और अगर आप जाएं और देखिए एनवीडिया का शेयर जो कि और ओपन एआई, इनका देखें तो ये इंडिया की जो पूरी इकॉनमी है उससे ज़्यादा इनके पास एसेट्स हैं या उनकी टर्नओवर एक तरीके से है। तो आप खुद भौचक्के रह जाएंगे। आप गूगल पे का सर्च करें कि टर्नओवर क्या है या उनका पूरा जो एक कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, तो आप सोचेंगे कि इतना कहाँ से आया है। तो देखिए इस तरीके से हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो बिना वक्त वेस्ट किए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। ये तो एक थ्योरेटिकल और लर्निंग की बात। आई होप मेरी स्क्रीन सभी को विजुअल होगी। प्लीज़ कंफर्म अगर आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन तो। सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, थैंक यू।
सो जैसे कि आज की क्लास है हाउ टू यूज एआई और अलग अलग टूल्स जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं उस पर बात करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे पहले जीमेल लगा रखा है, तो छोटा सा मैं आपको ईमेल करना सिखाऊंगा ताकि ईमेल करना सीख सकें अगर किसी को पता ना हो ईमेल कैसे करते हैं। पर उसमें हम कमांड एआई के थ्रू डालेंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं जेमिनाई के ऊपर। जेमिनाई का ही, गूगल का ही जैसे जेमिनाई है वैसे ही इसका है गूगल स्टूडियो नोटबुक एलएम के नाम से, लार्ज में लैंग्वेज सैलरी मॉडल है। बढ़ गई है यस मनीषा, आप कुछ कह रहे हैं? 18,800। तो विकी मनीषा जी नाइट mute कर दीजिए। इसने लिखा है किसने? जिसे सो आगे जैसे हम चैट जीपीटी की बात करेंगे, ऑफ कोर्स अगर आपने अच्छे से जाना है, अगर थोड़ा सा भी कहीं से आपके कान में पड़ा है चैट जीपीटी क्या है, तो आप गूगल किया होगा या आप थोड़ा सा बढ़ के यूज़ भी किया होगा, क्या पता। और क्लॉड एआई जो कि अभी काफ़ी फेमस हुआ है, लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। सो मेरा सभी से क्वेश्चन है सेशन को शुरू करने से आगे बढ़ने से पहले कि आपने कौन कौन से एआई यूज़ किए हैं। अगर किसी ने एआई यूज़ किया प्लीज़ अपने हैंड रेज करो। सनीश मिश्रा, सारिक खान, गुलशन कुमार, चैट जीपीटी हाँ चैट जीपीटी ऑफ कोर्स फेमस है काफ़ी, तो आपने सर चैट डेफिनेटली यूज़ किया जीपीटी होगा। जेमिनी भी यूज किया है। ओके ग्रेट। सो 5 लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो मेरा आगे का क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर आपने यूज़ किया है तो क्या लगता है कि क्या आपको हमेशा वो रिस्पॉन्स मिला है जो आप चाहते थे चैट जीपीटी से, या किस जिस भी एआई मॉडल को आपने यूज़ किया अभी तक, ऐसा हुआ है? ये सारी खान बताओ। यस सर, चैट जीपीटी बेसिकली यूज किया है। मतलब किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछना होता था या कुछ भी, तो चैट जीपीटी से बेसिकली मतलब हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। ओके, तो क्या आप पहली बार में प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो गई या दोबारा भी आपको कमांड देनी पड़ी है कि इसको और अच्छा कर दो या फिर ये डाल दो, ऐसा कुछ हाँ, ये सब करना पड़ा है सर। करना पड़ा है, राइट। सो ये सब अगर ना करना पड़े तो कितना अच्छा होगा ना। तो थोड़ा सा सेशन हम उस तरह भी घुमाएंगे इसको, ठीक है, कि आप सही मॉडल कैसे चुने अपने काम के लिए। अगर आपको राइटिंग करनी है या फिर कोडिंग करनी है या फिर कुछ जनरेट करना है। देखो इस क्लास को मैं बहुत हैवी बनाना चाहता नहीं, अगर आपको मैं न्यूरोलॉजिकल लर्निंग सिखाऊं, ठीक है, मशीन लर्निंग सिखाऊं, ठीक है, मल्टी मॉडल एआई, बहुत सारी थोड़ी सी चीज़ें करके कंफ्यूज नहीं करना था। हम सीधे काम की बात करेंगे कि हमें काम कैसे कराना है एआई से। इसके लिए आप गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके बहुत लेक्चर्स या वीडियो दे सकते हैं, ठीक है। तो हम काम के ऊपर बेसिकली फोकस करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं क्लास को। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे। ये प्रॉम्प्ट बहुत सुना होगा आपने। बेसिकली प्रॉम्प्ट एक कमांड है, ठीक है, यह एक जो आप डायरेक्शन देते हैं एआई को करने के लिए। अगर आप कमांड और प्रॉम्प्ट को एक ही मान के चलना, अगर मैं प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ तो समझ लो कमांड है और कमांड कह रहा हूँ तो प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सही कमांड कैसे दिया जाए, जो अभी मैं बात कर रहा था सारिक से, जैसा सारिक कह रहा था कि सर नहीं मिला दोबारा करना पड़ा है। तो आप एक सही कमांड कैसे दें कि वो एक बार में आपका वो जो आपका काम है वो उसको करके दे दे। तो इसके लिए हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कोई ऐसे इंजीनियरिंग वर्ड सुन के आप बहुत ज़्यादा घबराइए मत, बहुत सिंपल चीज़ है, आप ही आपको आगे देखते देखते समझ आएगा कि कितना आसान है ये करना, ठीक है। सो आप पहले से आई यूज़ कर रहे हैं, होता क्या है जब आप कमांड देते हैं वेग आंसर्स मिलते हैं, ठीक है, कई बार आपको दोबारा कुछ लिखना पड़ता है, तो आप फंस जाते हैं री प्रॉम्प्टिंग के लूप में। तो फिर आप एक कमांड देते हैं और उसके फिर एक कमांड देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आंसर आता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, होते हैं फ्रस्ट्रेट, क्या किसी काम का नहीं है या उतना अच्छा काम नहीं कर रहा रिफाइंड तरीके से। या क्या कर लेते हैं हम अक्सर, उसको कोई आपने मेल लिखने के लिए कहा, आपने कॉपी कर लिया उसको और जाके इसको एडिट कर रहे हैं। एडिट करने की जरूरत ही ना पड़े, हम ऐसा कुछ करेंगे, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आपको ये 4 फॉर्मूला रट लेने हैं, ठीक है। पहला है रोल, आपको एक रोल बताना है, ठीक। लाइक अगर मैं एआई यूज करने वाला हूं तो उसको बताना है मेरा रोल क्या है या आपका रोल क्या होगा करने के लिए, ठीक। अभी हम प्रैक्टिकल जाएंगे तो आप समझ पाएंगे क्या मैं कह रहा था। दूसरा है आपको टास्क बताना है कि आपको करना है क्या असल में, ठीक। और तीसरा बताना है कॉन्टेक्स्ट,
एक बैकग्राउंड देना है कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इस काम को कराना चाहता हूँ। और चौथा, आप फॉर्मेट रखेंगे, इस काम को किस फॉर्मेट में होना है। लाइक इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है रोल में, एक्ट एज अ सीनियर यूएक्स डिजाइनर। यानी कि मैं जिस भी एआई मॉडल आप यूज करने वाले हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो, जेमिनाई हो, आप उसको बोलेंगे कि आपको एज अ सीनियर यूएक्स डिजाइनर यूज कर बनना है। या आप सिंपली बोल बोल आप कुछ भी आप उसको बना सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, व्हाट्स एवर यू वांट। आगे है टास्क बताना है कि राइट 3 पैराग्राफ समरी। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं राइट यही लिख दो बस। हम ये नहीं बताते कितना वर्ड्स में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम बस ये इतना बताते हैं आपको ये काम करना है। तो स्पेसिफिक बनिए थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 पैराग्राफ समरी लिखिए। गिव द बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड में बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या अपने ऑडियंस को आप क्लैरिफाई करिए कि ये बंदा ऐसा है, ठीक है, इसको मैं बिल्ड कर रख रहा हूँ, इसकी मतलब बैकग्राउंड ये है, इसको मैं सेंड कर रहा हूँ। फॉर्मेट क्या रखने वाले हैं, फॉर्म में मेल है तो आप ऑब्वियसली एक पोलाइट, ठीक है, प्रोफेशनल टोन यूज करेंगे, तो आप वो लिखिए वहाँ पे। बुलेट पॉइंट में चाहते हैं वो स्पेसिफाई करिए, ठीक। अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं ऑब्वियसली आप फॉर्मल टोन में नहीं लिखेंगे। अगर आपको कुछ लिखना हो कहीं पे, कुछ ऐसा जो थॉट दिमाग में ना आ रहा हो, ठीक, तो आपको ये रट लेना है RTCF। ये 4 फॉर्मूला है, ठीक है। रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट। अब देखो होता क्या है। देखो जैसे आपने व्हाट्सअप यूज किया है, बेसिकली आप कोई भी नॉर्मली अगर आप क्लॉड, ठीक है, या फिर चैट जीपीटी या आप जमना यूज करेंगे, एक चैट की तरह सेक्शन खुलता है, उसमें आपको एक कमांड देना होता है लिख के, ठीक। लाइक आपने एक असिस्टेंट को आप कमांड दे रहे हैं। तो हम क्या करते थे नॉर्मली पहले, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ एक सेकंड। ईमेल राइटिंग करते हैं जैसे काफी लोग, हम लिखते थे राइट मी एन ईमेल अबाउट द प्रोजेक्ट अपडेट। मुझे एक प्रोजेक्ट अपडेट का मेल बना दो या लिख के दे दो। हमारी नॉर्मली कमांड ये रहती थी। होता क्या था, इसमें क्या गलती कर रहे थे, कोई ऑडियंस स्पेसिफाइड नहीं है, कोई टोन नहीं बताई, कोई लेंथ नहीं बताया हमने, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, और इसका मतलब क्या है वो भी पता नहीं। अब क्या करने वाले हैं, अब क्या हम लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे यू आर प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, राइटिंग टू अ नॉन टेक्निकल क्लाइंट। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कोई आपने प्रोजेक्ट लिया, आपने एक ऐसे क्लाइंट को लिख रहे हैं, इसका कोई टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं। ऑब्वियसली आप अपनी उस लैंग्वेज से बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि नॉन टेक्निकल है, उसे पता ही नहीं कुछ। तो उसके आगे आप क्या लिखेंगे, राइट अ 3 पैराग्राफ स्टेटस अपडेट ईमेल फॉर आर वेबसाइट रीडिजाइन। हमने एक वेबसाइट को दोबारा रीडिजाइन किया है, तो उसका 3 पैराग्राफ का स्टेटस अपडेट हमको लिखना है, ठीक है। वी आर ऑन शेड्यूल, हम कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि हम शेड्यूल पे हैं, ठीक है, बट द लोगो अप्रूवल इज डिलेड। तो लोगों का अप्रूवल अभी तक नहीं आया है। और कीप इट रीअश्योरिंग प्रोफेशनल। अब यहाँ पे हमने टोन सेट कर दी, फॉर्मेट सेट कर दिया, ठीक है, कि कैसा मेल होना चाहिए हमारा। जब ये आप कमांड देंगे, ठीक है, अपने जिस भी एआई से आप काम कराना चाहते हैं, ठीक, तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा कि दोबारा आपको रिफ्रेम नहीं करना पड़ेगा उसको। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सबको समझ आया, एनीवन, कोई क्वेश्चन अभी तक? आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आ रही है क्लास। मैं गेस करके चलता हूँ फिर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट हम कई बार करते हैं क्या, ये एक रिपोर्ट अपलोड कर देते हैं, ठीक है, कहते हैं समराइज दिस रिपोर्ट, समरी बना दो इसकी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया कि समरी किस बारे में है, ठीक है, कौन पढ़ने वाला है, क्या रोल होने वाला है, ठीक है, कितने बुलेट पॉइंट में चाहिए, क्या है, कुछ नहीं। अब हम क्या कमांड देंगे आगे से, समराइज दिस 40 पेज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट फॉर आर VP ऑफ सेल्स, ठीक है, हमें इतनी पेज की रिपोर्ट चाहिए। फोकस ऑन 3 ट्रेंड्स एंड डेटा आउटपुट अबाउट कॉम्पिटिटर प्राइसिंग, ठीक है। यूज बुलेट पॉइंट्स मैक्स 200 वर्ड्स। हमने लिमिट भी सेट कर दी यहाँ पे। तो हमने क्या किया, टास्क बताया, ऑडियंस डिफाइन की कौन है, फॉर्मेट स्पेसिफाई किया, ठीक, और हमने एआई को बचाया और अपने आप को भी गैस करने से, ठीक। तो इस तरीके से हमारी कमांड रहने वाली है आगे। टेंशन मतलब ये आपको जो मेरी पीपीटी है आपको एज अ PDF में शेयर कर दूंगा, ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। कई बार हमें कुछ आइडिया लेने होते हैं, आज दिमाग में नहीं आ रहा था कि कैसे हम इस काम को करने वाले हैं, तो हम कुछ ब्रेन स्ट्रॉमिंग आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, गिव मी आइडियाज फॉर अ टीम बिल्डिंग इवेंट। कोई टीम बिल्ड करना चाहते हैं किसी इवेंट के लिए, हमने बस स्पेसिफिक कमांड दे दी कि वह हमें एक टीम चाहिए, ठीक है,
तो आगे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसको यू आर इवेंट प्लानर, आप इवेंट प्लानर हैं फॉर अ टेक स्टार्टअप। आर 18% इंजीनियरिंग टीम इज मोस्टली इंट्रोवर्टेड। देखो बता भी रहे हैं, ठीक है कैसे। वी हैव, डॉलर में है इसको, आप रुपीज़ में कर सकते हैं, तो मैं इसे डॉलर सारे रुपीज़ में रखना भूल गया, ठीक है। तो वी हैव, इसमें लिखा है जैसे कि हमारा $1500 है, ठीक है, $1500। आई नीड अ हाफ डे एक्टिविटी, सजेस्ट 5 क्रिएटिव आइडियाज दैट डोंट इन्वॉल्व अल्कोहल और स्पोर्ट्स। अब देखो कितना अच्छा है, आपने कॉन्स्टेंट बताया, ठीक है, कहाँ पे कितना उसके अंदर आना है, लिमिट सेट की एक तरीके से, और एक जेनरिक आउटपुट रखा अपने एक तरीके से, पर्सनैलिटी बता दी टीम की आपने, बजट बता दिया आपने, कितनी स्पेसिफिक कमांड दी है, तो ऑब्वियसली आपको स्पेसिफिक आंसर आना ही है, ठीक। तो हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हम एआई को एक सर्च इंजन बना देते हैं, कि एआई गूगल की तरह यूज करते हैं इसको। हम जैसे गूगल पे लिखते हैं नहीं, बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, ये क्या है, वो क्या है, तो ये नहीं करना हमें। जैसे एआई अपने आप में एक बुलेट ट्रेन या एक जेट की तरह है, ठीक है, आप उसे एक नॉर्मल टू व्हीलर या कार बना के रखे हुए हैं, ऑब्वियसली आप उससे बहुत अच्छे रिफाइन वे में काम करा सकते हैं, तो क्यों ना वो करें। तो उसकी हम ये ट्राई करना है कि आप B2B एस सेल्स मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, और लिस्ट 5 डिमांड जन स्ट्रेटजीज फॉर अ $5000 मंथ बजट है, रैंक बाय ROI। तो इसलिए आप इस तरह से इसके बारे में आपको ये कमांड चाहिए स्ट्रेटजीज के बारे में। लाइक हम क्या करते हैं कि अगर कुछ सीखना होता है, हम लिखते हैं एक्सप्लेन मशीन लर्निंग। इसकी आप क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन 3 सेंटेंस, या 2 पैराग्राफ कर लो, 3 पैराग्राफ कर लो, जितने भी आपको संतुष्टि मिले, या अपने आपके पास टाइम है पढ़ने का, टाइम देने का। फ्रॉम नॉन टेक्निकल CFO, हमने बताया किसके लिए है, यूज एन एनालॉजी, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, गिव गिविंग अप आफ्टर वन बैड रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली हम ऐसा करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि यार अच्छा नहीं मिल रहा वो चीज़ जो हम चाहते थे इससे, तो हम कंप्लेन करते हैं, वो नहीं करना। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग है या उससे करेक्ट कर सकते हैं, गिव अप नहीं करना आपको, ठीक है, एक बार में। तो हमारी चीट शीट यही है, आपको रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट स्पेसिफाई करने हैं। आई थिंक जितने भी एग्जांपल दिए आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। हमने लेंथ बतानी है, अपनी ऑडियंस को बताना है, नेगेटिव कॉन्स्टेंट रखने हैं कि लिमिट है ये है, ठीक है, और एग्जांपल भी आप मांग सकते हैं ऑब्वियसली। और रिस्टार्ट नहीं करना, इटरेट करना है, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए बोल सकते हैं apps को, या इस तरीके से काम करो, ठीक है। तो आपको सिर्फ कीबोर्ड से तुरंत ही राइट नहीं करना, ठीक। तो आप इस तरीके से, आपको कोई बेकार आंसर नहीं मिलेगा। और ये थोड़ा सा बोनस है आपके लिए, अगर थोड़ा सा और आप प्रॉम्प्ट डाल सके तो, जैसे हम उसको बोल सकते हैं कि थिंक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप टू, वो क्या करेगा, वो एक जो आपको आंसर देने वाला है उससे पहले सोच के देगा कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ सामने वाले को, जिसने मुझे कमांड दिया है, वो सही है कि नहीं है, ठीक है, एक बार रीथिंक करेगा उसको, तो इसलिए आपके पास अच्छा आउटपुट आएगा। नेगेटिव कॉन्स्टेंट यूज करने, जैसे मैंने बताया आपको, लाइक अवॉइड पैसिव वॉइस बोल सकते हैं, यूज ज़्यादा यूज मत करो कुछ आप कंटेंट राइट कर रहे हैं तो, या एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल दे दो मुझे ताकि और अच्छे से चीज़ समझ आ जाए। आस्क फॉर ऑप्शंस नोट वन आंसर, आप ऑप्शंस भी दे सकते हैं कि मुझे 3 डिफरेंट अप्रोचेस बता दो इस चीज़ के, कि मैं कैसे कर सकता हूँ, या 3 ऑप्शंस दे दो मुझे, तो उसमें से मैं बेस्ट पिकअप कर लूंगा और उसे आगे बढ़ा दूंगा, ठीक। इटरेट, वही बताया मैंने आपको, इटरेट, डोंट रीस्टार्ट, दोबारा से आप दोबारा एक नया चैट खोल के ना शुरू कीजिए उसको, आप शॉर्ट करिए, उसमें आप एक फिर से स्पेसिफाई कर दीजिए कमांड को, तो वो अच्छा कर देगा आपको ऑब्वियसली। तो ये आपके लिए एक क्विक रेफरेंस कार्ड है जो मैंने बनाया है, इसको आप, जब मैं इसको, आप सेशन खत्म हो जाएगा आपको दे दूंगा, तो उसमें से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है प्रॉम्प्ट एलिमेंट, फिर से वही जो सारी चीज़ें मैं चाचू की बात कर रहा था आपसे, वही चीज़ें लिखी हुई है। एक सेकेंड, ठीक। और क्या करता है ये बताया है, और एग्जाम्पल बताया है, लाइक यू आर सीनियर मार्केटिंग जो हम पहले बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें क्योंकि टाइम हमारा काम लिमिटेड है, तो हम उसका अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ इस सेशन के बाद, जो आपने एक छोटा सा 5-10 मिनट का ये थ्योरेटिकल क्लास ली, कि AI डजंट गेट बेटर,
एआई हमेशा अच्छा नहीं होता, हमारे प्रॉम्प्ट्स अच्छे हो जाते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा होता है। एआई तो इवॉल्व हो कर रहा है, लेकिन हम अगर इवॉल्व नहीं करेंगे तो हमको आंसर कैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली। तो हमेशा आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आपके प्रॉम्प्ट्स अच्छे हों, आपकी कमांड अच्छी हो, आप कॉन्टेस्ट बताइए, सिर्फ ये बताइए कि आप ये काम कर दो। ठीक। तो ये सारे डिफरेंट एआई मॉडल्स हैं। ठीक। आई होप जो काम करते हो या किसी ने हो तो आपने देखा होगा, सुना होगा। पर हम सब पे फोकस करने वाले नहीं है, सबकी बात करने वाले नहीं है। ठीक। तो हम थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि क्या क्या टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं। वो हैं चैट जीपीटी, क्लॉड है, जमनाई है, ग्रॉक जो कि एक्स पे आपको मिल जाएगा, लामा, ठीक, जो कि मेटा का ही बनाया हुआ है, ठीक है, डीप सीक जो कि चाइनीज़ है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीप सीक जब आया था बहुत तहलका मचा था लास्ट ईयर। और ग्रॉक अपने बेटी आंसर्स के लिए, अपने शरारतों के लिए काफ़ी, ठीक है, उसके लिए पॉपुलर रहा। आपने एक्स पे देखा होगा, या न्यूज़ जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि क्या हुआ है हाल ही में। सो करता है क्या एआई कैसे काम, आप एक उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, यानी कमांड देते हैं, उसको टोकनाइज करता है, यानी इसकी टोकन बनाता है, उसको नंबर्स की फॉर्म में एक एआई सोचता है। जो आप बोलते हैं उसके रूप में बात नहीं करता, उसको नंबर पता होते हैं, और वहीं से वो अपने डेटा से आउटपुट जनरेट करता है। उसके अपने नेटवर्क होते हैं, उसके हिसाब से आपके रिस्पॉन्स आते हैं। ठीक है, तो एआई बेसिकली इस तरह से काम करता है। तो ये चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई ये आपने सुना होगा, ठीक है, जो आप जानते हो इनके बारे में। चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो बहुत स्टार्टिंग में आया था और इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्लॉड अभी हाल ही में पॉपुलर हुआ है और बहुत अच्छा है कोडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। और जेनेटिव एआई में और मल्टी मॉडल एआई में जेमिनाई से बेस्ट मुझे कुछ लगता नहीं अभी तक, जितना मैंने यूज़ कर लिया है इसका अपने कामों के लिए। तो चैट जीपीटी क्या करता है, इसका टास्क है आपके रोजमर्रा के जो भी काम है वो बहुत आराम से कर देगा। ठीक है, अगर इमेज जनरेशन कराना है वो भी कर देगा एज अ जनरेटिव एआई। वॉइस कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, और उसकी मेमोरी भी अपडेट होती रहती है, यानी कि आप सेटिंग में आप चाहे उसको बंद भी कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं कि वो आपके लिए पर्सनलाइज हो जाएगा। उसको तरीका समझ आ जाएगा कि आपके काम करने का तरीका क्या है, आप किस तरह से काम कराते हैं। प्लॉट क्या करता है, अगर आपको डिटेल और लॉजिकल आंसर चाहिए, राइटिंग करनी है कोई चीज़, बेस्ट टूल है बता रहा हूँ आपको मैं। और बहुत ज़्यादा टोकन हैंडल कर सकता है एक बार में, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स ले सकता है। तो आप लॉन्ग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं प्लॉट को, ऑब्वियसली यूज़ करने के लिए, कोई रिपोर्ट वगैरह हो। और जेमिनाई जो कि अपने आप में मल्टी मॉडल एआई है, आप उसको टेक्स्ट दीजिए, लिंक दीजिए, ठीक है, फोटो दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, सब में से वो जनरेट करके आपको दे देगा। तो यहाँ तक हम रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो बेसिकली अगर आपको किस चीज़ के लिए क्या यूज़ करना है, इसका मैंने एक चार्ट बना रखा है, ये आप बाद में देख लेना, ठीक है, सेशन के बाद। इस पर अभी बात नहीं करेंगे। और किस तरह से काम के लिए क्या मॉडल आप पिक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आज मैंने बनाया है, ठीक है। तो डू आई नीड रियल टाइम और करंट इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो आप ग्रॉक यूज़ कीजिए, क्योंकि बस बहुत अच्छा डेटा है, ठीक है। अगर आपका वीडियो सेंसिटिव है और कोई नेशनल का कोई थ्रेड या प्राइवेसी वो ना हो तो आप लामा यूज़ कर सकते हैं। लामा काफ़ी प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट यूज़ करना है तो आप जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हैं प्रो। उसके पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है लॉन्ग डॉक्यूमेंट को हैंडल करने की, जो अच्छे से करके देगा। अगर आपको प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाना है तो क्लॉड बहुत अच्छा है, बहुत लॉजिकल तरीके से सोचता है। और जनरल टास्क के लिए जैसे मैंने बताया चैट जीपीटी बेस्ट है। तो ये हो गई बात सारी थ्योरेटिकल, ठीक है। यहाँ पे आधा सेशन हमारा इसमें जाना ही था, तो आपको समझाने के लिए कि एआई है कैसे, काम कैसे करता है। तो हम आगे थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक। तो मैं आपको अब प्रैक्टिकल सेशन देने वाला हूँ एआई पे। ठीक। लाइक ये कमांड हम दे सकते हैं, आई एम बी कॉम ग्रेजुएट एंड वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब एंड ऑफ एन अकाउंटेंट एज अ फ्रेशर। जैसा कि आपने अभी ट्रेनिंग ली है, ऑब्वियसली बिजनेस अकाउंट्स ट्रेनिंग, आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ऑब्वियसली अगर आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो हम एक कमांड दे सकते हैं, ऑब्वियसली प्लीज राइट अ कवर लेटर फॉर अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द सेम। ठीक। तो हम कमांड देख के देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ब्राउजर आई थिंक यस दिख रही सर। है, प्लीज कंफर्म। ठीक है। तो बेसिकली आपको चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, ओपन एआई लिखना है। ठीक। आपके पास ऐसा लिंक आ जाएगा,
और ऐसा लोगो होगा चैट जीपीटी का, इसे आप याद कर लें। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक, तो आप सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे और हम कमांड देने वाले हैं। हम लिखते हैं यू आर अ बीकॉम ग्रेजुएट एंड वांट टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, ठीक, प्लीज राइट ईमेल, कीप द टोन प्रोफेशनल एंड पोलाइट। आप सभी को मेरी कमांड दिख रही है? यस सर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने आपको बीकॉम ग्रेजुएट बनाया है, आपको अप्लाई करना है अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, और हमको इसको एक मेल लिखवानी है, ठीक है, कीप द टोन प्रोफेशनल एंड पोलाइट। हमने एक पोलाइट टोन यूज़ करनी है, ठीक, प्रोफेशनली रखना है इसको। अब कोई नॉर्मली सर्च इंजन में जाके क्या करता है, या इस पे लिखता है कि भाई मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, और अब ये दिखते कमांड प्लीज़ राइट अ ईमेल फॉर अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है, बट यहाँ पे हर चीज़ स्पेसिफाई कर दी हमने, तो ये अपने आप में एक अच्छा कमांड हुआ। तो इस कमांड को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये क्लिक करते ही वहाँ से आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा आंसर। यस सर। सो जैसा कि लिखा है, डियर सर मैडम, आई होप दिस फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग एंड एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट एट योर esteemed organization. I have completed my Bachelor of Commerce and possess a strong foundation in accounting principal financial reporting। आप बता रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग माई अकेडमी जर्नी अब मैंने ये किया है, ठीक है, आई एम ईगर टू बिगिन माई प्रोफेशनल करियर। और कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम मेल के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा। आप मेल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा मेल पे भी क्लास लूँगा आपकी, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। तो मैं एक जनरल दूसरा टैब खोल रहा हूँ इसके लिए। आप सभी के पास फ़ोन में मेल होगा, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, बाकी सिंगल लैपटॉप ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं सिंपली। सबके पास कंपोज का ऑप्शन होता है, ये आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, ठीक है, पेन सा साइन, यहाँ लिखा है कंपोज। तो यहाँ से जब क्लिक करेंगे इसके बाद आप मेल लिख सकते हैं आप, ठीक है, जब ये करेंगे तो हमारी विंडो ओपन हो जाएगी ऐसी, ठीक। तो स्टार्टिंग में आता है फ्रॉम, यानी कि मेरी जो ये ईमेल आईडी है जो कि मैं फुल डोमेन यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसके थ्रू आपका मेल जाना है, जो कि ये आपकी आईडी है जिसे भेजना है, यहाँ हम उसकी आईडी लिखेंगे, लाइक हमें विक्की गौतम जी को मेल भेजना है, ठीक है। हमने विक्की गौतम जी का मेल यहाँ लिख दिया, ठीक। और सब्जेक्ट क्या था, टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, ठीक। आप चाहते तो आप चाहे तो एक ऑप्शन है कि आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें जो अभी तक आपने लिया, और इसी में ही मैं आपको यह यूज़ करना सिखा देता हूँ। आपके पास फ़ोन में भी ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आता है प्लीज़ हेल्प मी राइट, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, ये जमनाई का ही वो है, इंटीग्रेटेड एआई यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे वो कमांड को हम दोबारा पेस्ट कर देते हैं जो भी हमने कॉपी की, ठीक, वही सेम कमांड है, यू आर अ बीकॉम ग्रेजुएट एंड वांट टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, प्लीज राइट अ ईमेल, कीप द टोन प्रोफेशनल एंड पोलाइट, ठीक। मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, अब ये मेल लिख रहा है यहाँ पे, हमने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो आप बजाय इसके कि आप एआई पे लिखवाएं, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने लिख दिया है, ठीक है, रेस्टोरेंट नेम जो भी इसका नाम हो, ठीक है, तो कंपनी का नेम यहाँ पे आप डाल देना, बाकी ये पूरा उसने लिख दिया आपके लिए मेल, ठीक। बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा फ़ोन नंबर है, मैं जाऊँ डाल सकता हूँ, मेरा ईमेल तो ऑब्वियसली है, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे करेंगे इंसर्ट, तो ईमेल यहाँ पे आ जाएगी एज इट इज़, ठीक। इतना सीखा आपने, यहाँ से आप अपनी फॉर्मेटिंग सही कर सकते हैं ऊपर नीचे। बाकी एआई का मैंने बता दिया कैसे यूज़ करना है, और अटैच फाइल के लिए ये ऑप्शन होता है यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपनी फाइल कोई भी अटैच कर सकते हैं, अपनी मेल ऑब्वियसली, या कोई लिंक हो तो आप यहाँ से अटैच करेंगे, ठीक, वो लिंक इस बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे। और बाकी इमोजी अनप्रोफेशनल टोनिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली हम तो प्रोफेशनल यूज़ करें तो नहीं करेंगे। बाकी ड्राइव होता है कि 20-25 MB की बड़ी फाइल हो तो वो डायरेक्टली मेरे से जाती ही नहीं है, तो आपको ड्राइव से लिंक बना के भी डालना होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये इंसर्ट फोटो का ऑप्शन है, और बाकी ये
कॉन्फिडेंशियल मोड है, जैसे कि एक प्रिवेसी का ऑप्शन है, वन टाइम सीन जैसे आप देखते हैं व्हाट्सएप पे, ऐसे ही ईमेल में भी होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपायर कब होगा उसका लिमिट लिमिट सेट कर सकते हैं, या एक दिन में हो जाएगा। और इसे कोई फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, कोई प्रिंट नहीं कर पाएगा, डाउनलोड नहीं कर पाएगा इस ईमेल को। तो स्पेसिफाई करने के लिए ईमेल होती है, तो आप जब सेव कर देंगे तो ऑब्वियसली वो ऐसी जाएगी, तो हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो बाकी ये था। बाकी एक जो क्वेश्चन आता है, लोग सीसी बीसीसी का मतलब पूछते हैं, तो बेसिकली कार्बन कॉपी या इसकी कॉपी जाते हो किसी और को जाए तो हम सीसी कर देंगे। तो सीसी में हम लिख देते हैं लाइक सक्षम लोग सोसाइटी, ठीक है। तो सक्षम लोग सोसाइटी को मैंने ये सीसी कर दी है, इसकी कॉपी इनको मिल जाएगी। बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी, इसका मतलब होता है यहाँ पे आप जो मेल लिखेंगे, जिसको ये मिल जाएगी, उसको ये पता नहीं चलेगा कि इनको भी मिली है, तो इसके लिए होता है। बाकी ये दो लोगों का नाम, विक्की गौतम जी और सक्षम लोग सोसाइटी, इसका दिखेगा कि इनको मेल भेजी गई है। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमित गौतम जी, तो ठीक है। तो ये मेल तो अमित गौतम जी को चली जाएगी, लेकिन आप ये जान नहीं पाएंगे कि मेल अमित गौतम जी को गई है, इसलिए इसका ब्लैंक कार्बन कॉपी के रूप में यूज होता है बीसीसी, ठीक है। तो इस तरह से हम मेल करते हैं। सो मैं मेल भेज दे रहा हूँ आगे। यहाँ से जब क्लिक करेंगे सेंड, तो सेंड हो जाएगा। ठीक। ओके करते ही मेल चली गई। ठीक। तो इस तरह से मेल होती है। और एआई का आपने एक बेसिक का छोटा सा नमूना देखा, तो आगे हम और देखते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं इसका। सो बेसिकली हम बैक टू अपने पीपीटी पे आ जाते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक है तो प्लीज़ पूछिए, कैसे काम कर रहा है एआई। अगर अभी तक कोई भी डाउट है किसी का, प्लीज़ एनीवन, स्टेज तक किसी को कोई डाउट हो तो। चलो आई थिंक कोई डाउट नहीं है किसी को, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही आप एक फॉलोअप मैसेज के लिए मेल ले सकते हैं। ठीक। अपना सारा पोजीशन बताते हुए, कॉन्टेक्स्ट बताते हुए, एक सिंपली मैंने रखा है, या सिक लीव लेने के लिए, या असाइनमेंट टाइम फिनिश नहीं हुआ है उसके लिए, या मेरा फेवरेट जो आप करना चाहते हैं, आई वांट टू प्रैक्टिस अ मॉक इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कमांड के लिए। कुड यू प्लीज एक्ट एज द इंटरव्यूअर फॉर अ मोमेंट। जब ये कमांड आप देंगे तो एआई आपके एक इंटरव्यू के रूप में रोल प्ले करेगा। आपको एक अच्छा चीज़ बताता हूँ इसमें, एक सेकेंड। हम आते हैं सीधे दोबारा अपनी इस एआई के इस पे। जब आप जेनाई पे जाएंगे तो यहाँ पे स्पीच का ऑप्शन होता है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपके फ़ोन में भी दिख जाएगा। ठीक। और उसमें जमनाई मोड होता है स्पेसिफिकली। जब आप चाहें तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, उसको बोलो कि मुझे इंटरव्यू देना है इस पोस्ट के लिए, क्या आप मेरे लिए इंटरव्यू का रोल निभा सकते हैं। तो उसके बाद आप डायरेक्टली बात करते हुए इस इंटरव्यू को प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी के कॉन्स्टेंट के कारण आपको ऐसे दिखा नहीं सकता। तो आप प्लीज़ अपने सेशन के बाद जाइए, प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की, अगर आप चाहते हैं एक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना ऐसी नॉर्मली। और उसके बाद उसको आप कह भी सकते हैं कि मेरे आंसर्स को इवेलुएट कर लीजिए। तो ये प्रॉम्प्ट था वर्क के लिए। बाकी ईमेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक। प्रॉम्प्ट इंग्लिश एफिशिएंसी के लिए यूज कर सकते हैं। हम ऐसे बैठ गया, कई बार हमारी इंग्लिश ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं होती कई लोगों की, और मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम ग्रामर चेक करा सकते हैं। हमने हमेशा इतना प्रिसाइज कई बार लोग नहीं लिख पाते हैं, तो आप कमांड सकते दे सकते हैं, रिव्यू एंड करेक्ट द ग्रामर स्पेलिंग पंक्चुएशन सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन टेक्स्ट। ये कमांड लिखेंगे, उसके बाद अपना जो भी आप करेक्ट कराना चाहते हैं टेस्ट को वहाँ पेस्ट कर दीजिए, वो उसको सही कर देगा। चलो एक प्रैक्टिकल सेशन ले लेते हैं इस पे, ठीक है। इस बार हम, ठीक है, स्पीकर लेते हैं, एक सेकेंड, न्यू चैट। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा एनीवन? मैं चाहता हूँ इसके लिए कोई वॉलंटियर है। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा इस टास्क के लिए? चलो ठीक है, आई थिंक कोई वॉलंटियर नहीं करना चाहता। चलो मैं नॉर्मली सिंपली लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी जो मेरे माइंड में आएगा, उसके बाद उसके ग्रामर चेक कराएंगे। ठीक। सो आई एम गोइंग टू राइट अबाउट माई टूडेज टास्क, ठीक है, मैंने क्या क्या किया। लाइक आई वेक अप, और मैं जानबूझ के एरर्स करने वाला हूँ, ठीक है।
तो मैंने बहुत सारे एरर किए हैं। मैंने सिंपली लिखा है वेक अप इन द मॉर्निंग एंड टुक फ्रेश बाथ, आफ्टर दैट आई लिव फॉर द ऑफिस, ठीक, एंड डिड वर्क देयर एंड कम बैक टू होम। मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं। ना तो मैंने स्पेलिंग अच्छी लिखी है, ना ही मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, ना ही मैंने टेंसेस को सही से रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये ग्रामर चेक कराएंगे इससे। तो बेसिकली एक सिंपल कमांड आपके लिए बता देता हूँ जो मैं यूजली परफॉर्म करता हूँ। मैं बहुत डिटेल में लिखता, करेक्ट द ग्रामर स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन टेक्स्ट, ठीक। तो मैंने इसके आगे कमांड लगाई, करेक्ट द ग्रामर स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन टेक्स्ट, ठीक। तो ये कमांड दिया है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसने मेरे कमांड को रिफाइन किया, अच्छा बताया कि क्या हुआ असल एक्चुअली में। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड टेक अ फ्रेश बाथ, आफ्टर दैट आई लीव होम फॉर द ऑफिस, वर्क देयर एंड देन कम बैक होम। इसने इसको रिफाइन कर दिया, अच्छा कर दिया। हम चाहे तो इसकी ट्यूनिंग भी चेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड में लिखता हूँ मेक इट प्रोफेशनल एंड पोलाइट। I wake up in the morning, take a bath, and after left for the office, I complete my work there and return home। थोड़ा सा और अच्छे स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कमांड दे इसको, ठीक है, ब्यूटीफाई इट। उसको और अच्छे से एनहांस करके देगा, ठीक है। लाइक तो अंग्रेजी आपसे बोल रहा हूँ जैसे, आई कमेंस माई डे इन द मॉर्निंग विथ अ रिफ्रेशिंग बाथ। देखो कितने फैंसी वर्ड यूज हो रहे हैं। फॉलोइंग विच आई प्रोसीड टू द ऑफिस, आई डिलीजेंटली अटेंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर एंड रिटर्न होम देयर आफ्टर। घर वापस आ गया उसके बाद मैं। आई होप आपने देखा हो कितना अच्छे से हमने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं इसको डेमो को स्टॉप करता हूँ, आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो ये इंग्लिश एफिशिएंसी के लिए था। बाकी अब जैसे हमारे पास टाइम कम है तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने अभी तक की है और आप कितने और अच्छे नेक्स्ट लेवल पे जाके करने वाले हैं। तो ये सारा बोनस कंटेंट देखने वाले हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी रखा है। अगर आपको कुछ समझनी हो, ठीक है, सिंप्लीफाई करनी हो, नोट्स लेनी हो, प्रैक्टिस करनी हो, तो इसके लिए कमांड आप ले सकते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे आके ये सेशन के बाद। तो बोनस में कुछ ही आपको दिखाऊंगा। जैसे मेरा यूजुअली जो मैं करता हूँ, जैसे बर्थडे विश करना हो किसी को, अब सभी का बर्थडे आता है ऑब्वियसली, और हर किसी को एक तरीके से विश नहीं कर सकते। तो एक कमांड है, राइट अ वार्म एंड पर्सनलाइज बर्थडे मैसेज फॉर आर रिलेशन। कोई किसी का कैसा रिलेशन है, कोई बॉस है, कोई टीचर है, कोई फ्रेंड है, अच्छे से कर सकते हैं। कीपिंग द टोन इमोशनल एंड जेन्युइन। कोई बॉस है तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल लिखेंगे आप, ठीक है। तो एक पर्सनलाइज मैसेज बना के दे देगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा वहाँ पे। या मेरा फेवरेट कमांड ये होता है कि मेरा जैसे इंट्रोडक्शन कराने थे कई बार हमें, ठीक है, और प्रोफाइल का बड़ी आ जाती है, तो उसे मैं 100 वर्ड्स में सेट करता हूँ। ये छोटा बनाते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो ये मेरी कमांड रहती है, ठीक। या जैसे एक सेशन लेने वाले हैं, या आप टूल्स बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने सेशन आज ले रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन हाउ टू यूज चैट जीपीटी एंड ऑनलाइन फॉर वर्क, राइट फॉर वेरोरेन टूल्स। क्या क्या टूल्स होते हैं, ठीक है, राइट इंगेजिंग एंड कॉन्फिडेंट इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स फॉर मी। मैं कैसे इसको शुरू करूंगा, वो एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स बना के देगा जो मेरा होता है पर्सनल फेवरेट। जैसे कोई आप पर्सनल आप हेल्प चाहिए, ठीक है, जैसे मैं सुबह उठने के लिए आप क्या टिप्स ले सकते हैं, उसके लिए कमांड है। थंबनेल जैसा होता है, अभी हमने डालना शुरू किया है तो उसके लिए कैसे यूज़ कर रहे थे, उसके लिए कमांड है। तो बेसिकली अब हम आते हैं पूरा प्रैक्टिकल सेशन पे, ठीक है। एक लेवल अपना अप करते हैं। अभी तक जो हमने सीखा ये बेसिक था आपके लिए। लाइक जैसा मैंने बताया, क्लॉड जो है काफ़ी लॉजिकल आंसर देता है। ऑब्वियसली मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइक जो मैं काम करता हूँ अपने। अ, एक सेकंड। मैंने ग्रामर चेक रिक्वेस्ट की थी। लाइक मेरे पास बहुत बड़ा ड्राफ्टिंग के लिए काम आ रखा था, ठीक है, और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया अपने इस पूरे ड्राफ्ट को यहाँ पे। और उसने बताया कि पैरा 3 में क्या मिस्टेक है, पैरा 4 में मैंने क्या मिस्टेक की, पैरा 6 में क्या मिस्टेक की, पैरा 7 में क्या मिस्टेक की, 8 9 10 13 14 सब आ गया। बस एक कमांड लिखी थी, चेक फॉर ग्रामर करेक्शन। उसने सारे पैरास बता दिए। और जब मैंने थोड़ा और इसको अच्छा करने के लिए क्या किया, प्लीज फाइंड और लोकेट इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ कंप्लेंट डेफिनेट। कई बार होता है कि कोई चीज रिपीट होते हैं, उसकी सही करना होता है। तो उसने
उस चीज़ को लिया यहाँ पे, कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, ठीक है। उसने एक पैरा को स्पेसिफाई करके बताया है और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है आपके सामने। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ये है जिसका मैंने पर्सनल यूज़ किया है। बाकी मैंने एआई की हेल्प से एक प्रोडक्टिव टूल भी बनाया है, ठीक है। यहाँ पे प्लॉट में एक ऑप्शन होता है, वो है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट लाइक कि एक पर्सनलाइज्ड आप टूल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे डिज़ाइन के रूप में, जैसे मैंने अपने लीगल केसेस जो होते हैं वो ट्रैक करने के लिए टूल बनाया है कमांड देके। तो मैं दिखाता हूँ आपको कमांड दिखा के। तो बेसिकली जब आर्टिफैक्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप करने आते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। ये शुरू सब कुछ शुरू करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट कमांड थी क्या चाहिए, प्रोडक्टिव टूल चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्टिव टूल, नोट जनरल, ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर मैंने स्पेसिफाई किया कि आई वांट टू मेक अ प्रोग्रेशन चार्ट फॉर माय केसेस डेट वाइज व्हाट हैपेंड ऑन द लास्ट डेट। तो ये सारी कमांड थी। उसके बाद सारे उसने कोड रन किए और उसने मेरे सामने ये बना के दिया मेरे केसेस के लिए, ठीक है। कि लाइक मुझे केस का ट्रैकिंग रखना हो, ठीक है। या मैं अपने नए केस ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। ऐसे ही आप चाहें तो अपने पर्सनलाइज चीज़ों के लिए आप एक टूल डेवलप कर सकते हैं, ठीक। वो आपको करके दे देगा। तो ये इसका एग्जांपल था। लाइक मैंने आज सुबह एक वेबसाइट बनाई थी, तो आपको दिखाता हूँ। आर्टिफैक्ट पे आते हैं दोबारा। एक लॉ फर्म की वेबसाइट बेसिकली कैसे दिखनी चाहिए, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो उसने कोड रन करके एचटीएमएल जनरेट कर दिया, ठीक। तो आपको मैं बेसिकली बड़े पे दिखाता हूँ कैसे दिखती है वेबसाइट। मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। लाइक वहाँ से मैंने एचटीएमएल फाइल डाउनलोड की और उस पर क्लिक करता हूँ। देखो वेबसाइट तैयार है आपके सामने। आपको एक ओरिजिनल वेबसाइट लग रही होगी पूरी, जैसे आप किसी भी साइट पे आते हैं, ठीक है। आप जैसे इसको दे सकते हैं, ठीक। तो किसी को कांटेक्ट करना हो यहाँ पे आप लिखिए, ठीक है। उस रिस्पॉन्स को भी ले रहा है, बहुत अच्छे से बिल्ड किया है डिफाइन वे में। और रिक्वेस्ट कंसल्टेशन क्लिक करेंगे। देखो उसने रिमार्क्स भी दे दिए, थैंक यू अ मेंबर ऑफ आवर टीम विल बी इन टच विद इन 1 बिजनेस डे। तो उसने खुद ही ये बनाया है और बहुत ही स्मार्ट है एआई। आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अपना ज़्यादा मेहनत ना करनी हो, सारे कोड रन करके आपको दे देगा। एचटीएमएल फाइल के रूप में डाउनलोड कीजिए, बाकी वाले सॉफ्टवेयर को और अच्छे से बनाइए और डोमेन वगैरह खरीद सकते हैं आप अपने इस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। तो ये था वेबसाइट का एक जो मैंने आपको दिखाया, ठीक। आप जेमिनाई पे जाते हैं। जेमिनाई बहुत ही अच्छा जनरेटिव एआई है जो मुझे अभी तक लगा है। आपको कोई इमेज जनरेट करानी हो, कई लोगों ने बहुत सारी इमेज जनरेट कराई होंगी, खेला भी होगा उनके साथ होगा, ठीक है। तो आई होप आपने प्रैक्टिस की हो, आपने गिबली आर्ट बनाया होगा। तो मैंने एक ऐसी एक वीडियो बनाई इससे, ठीक। ये स्टूडियो है गिबली का, तो आपने सुना होगा एनिमेटेड वीडियोस का। तो मैंने एक एनिमेशन वीडियो बनाई इससे। कमांड क्या दिया दिखाता हूँ आपको मैं, कितनी अच्छी कमांड लिखी है मैंने। क्रिएट अ सिनेमैटिक एनिमेटेड वीडियो इन स्टूडियो गिबली स्पाइड स्टाइल, द सीन फीचर्स अ यंग बॉय रनिंग अक्रॉस वास्ट लस ग्रीन हिल्स ड्यूरिंग गोल्डन आवर। तो इतनी बड़ी कमांड मैंने लिखी, बताया क्या क्या होगा, ग्रीनरी कैसी होगी, स्काई कैसा होगा, सब कुछ बताया। उसके बाद इसने ये वीडियो बनाई। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कितना अच्छा वीडियो बनाया इसने। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन वीडियो का। यस सर। इसने बेसिकली छोटी सी स्क्रैच से वीडियो बिल्ड की है, ठीक। तो आपने देखा कितनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो है। और ये वीडियो आपको नॉर्मली आपको फ्री में कोई आई डेवलप करके नहीं देगा इतने अच्छे से, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल जो आपको मैंने दिखाया। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी चलते हैं। ऐसे ही आप मान लो आप कोई ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक मैंने एक फ्रेंड के कहने पे एक लिपस्टिक की ऐड बनाई थी, ठीक है।
तो मेरा कमांड क्या था दिखा देता हूँ आपको। मैंने लिखा यू आर हाईली क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट। मैंने उसको बताया कि आप एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट हैं। क्रिएट अ कंप्लीट एंगेजिंग प्रेजेंटेशन रेडी एडवर्टाइजिंग फॉर अ टॉपिक लिपस्टिक विद ट्रूथ। ठीक। रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैची बनाओ, यूनिक नेम डालो, क्रिएट अ पावरफुल स्लोगन टैगलाइन। ये सारे कमांड में लिख दिए। एड अ क्लियर प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन द एड। ठीक है, सारे डाल दिए मैंने। और इसके बाद इसने ब्रांड का नेम खुद बना दिया अपने आप। ठीक है, स्लोगन टाइटल सब लिख दिया। और उसने एक वीडियो जनरेट करके दी है। और इसमें कोई भी रियल करेक्टर नहीं है, सब आर्टिफिशियल है। तो आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये क्या बनाया है इसने। ठीक है, इस कमांड के भी आप। तो ये ऐड बनी है। ठीक, मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। Introducing the Sack Stick. Quit music. Your outfit looks like a traffic light. Your classes are boring. सच कड़वा है पर आपके lips. Introducing the Sack Stick. ठीक, तो इसने एक ऐड बनाई है और सारे खुद ही अपने हिसाब से इसने बनाया है। ठीक है, इसमें किसी को हमने कास्ट नहीं किया, कोई एक्टर रियल नहीं है, सब आर्टिफिशियल है। और आगे बढ़ते हैं। तो टाइम कम बचा है तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा और अच्छा दिखाते हैं और एडवांस लेवल पे ले आते हैं। अगर आपको रिसर्च करनी हो, कोई अच्छे से चीज़ों को समझना हो, तो हम सीधे नोटबुक एलएम पे आते हैं। गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको बेसिकली लिखना है नोटबुक एलएम। मेरे सेशन पहले आ गया तो मैंने क्लिक कर दिया। इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नोटबुक एलएम आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले से ही कुछ काम किया हुआ है तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर अगर आपने अभी हाल में पढ़ाई की हो, उसमें एक इंग्लिश में चैप्टर था, अगर आप सभी ने इंग्लिश पढ़ी है, बुक पढ़ा है ओबियसली, इवांस ट्राइज एंड ओवर लेवल मेरा फेवरेट चैप्टर था, तो मैंने उसका एक थोड़ा सा समराइज वर्जन से बनाया है। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है। तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, कुछ भी आप सीखना हो, ठीक है, किसी भी काम करना हो, ऐड रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो वेबसाइट डाल सकते हैं। ठीक है, किस वेबसाइट से डेटा ले रहे हैं, कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं, बताया यूट्यूब का भी डाल सकते हैं लिंक, ड्राइव से फाइल डाल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये सब कुछ ये आप अपलोड कर देंगे, या आप कोई एक चीज़ भी अपलोड कर देंगे वो भी इनफ होगी। मैंने बस कॉपी पेस्ट किया एक टेक्स्ट को। ठीक है, और ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टूडियो। ये आपको एक इंगेजिंग मेथड में वो चीज़ सिखाता है। बेसिकली यहाँ पे आप चाहें तो इवांस ट्राइज एंड ओवर लेवल एक बुक थी। ठीक है, उसमें चाहे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा था। तो जब आप यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे, ऑडियो जनरेट करके दे देगा। स्लाइड बनाएंगे तो आपका पीपीटी तैयार हो जाएगा। वीडियो बना देगा। ठीक है, और कैसे सिनेमेटिक वीडियो बनाता है अच्छी सी, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैं क्लिक करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा जनरेट करने में। ठीक है, 5-10 मिनट लग जाएंगे, तो मैंने पहले जनरेट कर रखी है, तो आपको दिखाता हूँ प्ले करके क्या इसने बनाया है इससे। तो इसकी ये एक समरी है। कहानी है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो दिमाग का एक ऐसा शतरंज है जहां हर चाल के दो मतलब हैं और हर मोहरा अपनी जगह पर बहुत होशियार है। सोचिए जरा, एक कैदी है जो जेल से भागने में माहिर है, मतलब एकदम उस्ताद, और दूसरी तरफ है एक ऐसी जेल जहां से परिंदा भी पर न मार सके। तो क्या होता है जब ये दोनों टकराते हैं, और वो भी एक मामूली सी जर्मन भाषा की परीक्षा की आड़ में? ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तो दिमागी कसरत की जंग है। तो मिलिए हमारे हीरो या विलेन जेम्स इवांस से। जेल के लोग उसे इवांस द ब्रेक बुलाते हैं, और ये नाम उसने यूं ही नहीं कमाया। सो बेसिकली इसने एक ब्रीफ समरी बनाई है मेरे उस पूरी कहानी की। ठीक है, तो मैंने इसका एक सिनेमेटिक वीडियो बनाया है, वो भी दिखाता हूँ आपको, सेम कमांड से वहीं पे। ये थोड़ा इंग्लिश में है क्योंकि ये ऑप्शन हिंदी में अवेलेबल नहीं था, तो ये इंग्लिश में चलेगा, लेकिन आपको पसंद आएगा। James Evans executed his fourth prison break without forcing a single lock. He bypassed a maximum security environment entirely through social engineering and institutional manipulation. A post-incident analysis reveals 3 distinct points of operational failure: external infiltration, confirmation bias under stress, and a complete chain of custody breakdown. Concrete walls and steel bars offer zero containment if the personnel operative smuggled in a rubber ring carrying pig's blood mixed with trisodium citrate to prevent clotting. Exam materials were also weaponized.
A planted correction slip passed the phrase Zoom, Golden, and Lowen to confirm the rendezvous coordinates. Fortifying internal physical barriers yields no security advantage if external contractors. ठीक, ये आपने देख लिया, आपको ज़्यादा अंग्रेजी नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। तो हम बेसिकली बैक टू आते हैं अपनी दोबारा उस पर स्क्रीन पे। ठीक, आपको जनरेट करने के लिए क्या करना है, बेसिकली वीडियो पे क्लिक करना है, दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे सिनेमैटिक इफेक्ट के लिए ये था यहाँ पे, और एक्सप्लेनर आप बना सकते हैं यहाँ पे। आज पे क्लिक करेंगे, अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक कमांड चाहिए तो क्या एनालाइज करना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपली। और यहाँ से मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट किया था हिंदी बनाने के लिए, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश पे है, तो आप यहाँ से आप हिंदी चूज़ करेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे हिंदी, मैथिली, मराठी सब है। हिंदी क्लिक करेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन काम हो जाएगा, और ये फ्री है। ठीक, माइंड मैप है, तो माइंड मैपिंग आपको कुछ पढ़नी होती है, ठीक है, और कई बार टाइम नहीं होता, ठीक है। आप चाहते हैं फटाफट आपको छोटे से पढ़ के समझ आ जाए क्या है, तो माइंड मैपिंग भी इसने बना सकती है। ठीक, माइंड मैप, एक सेकेंड, तो ये रहा माइंड मैप इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये चैप्टर हमारा, ठीक है। क्या कैरेक्टर थे इसके अंदर, उस सबका वो लिख दिया। ये कैरेक्टर थे, जेम्स था, गवर्नर था, जैक्सन था, स्टीफन था, ये थे। सेटअप कैसा था उसने बता दिया, ओ लेवल एग्जाम था, लोकेशन कहाँ था, सेल में उसके, यानी कि उसकी जेल में। स्केप प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया उसने बता दिया, रिसेप्शन क्या क्या चीज़ें थी। तो आप जब जब क्लिक करते आएंगे आपके पास माइंड मैपिंग आती जाएगी। अगर आपको एक अच्छे डिजिटल तरीके से पढ़ना हो, कुछ काम करना हो, तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और ऐसी फ्लैश कार्ड है हमारे पास, ठीक है, और एक बड़ा सा पोस्टर टाइप कह लो, ठीक है। क्या क्या हुआ था इसके अंदर वो भी इसने खुद जनरेट करके दिया है। अब थोड़ा सा इमेज का देख लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने वाला था कि मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करता हूँ, उसका वहाँ से एक थंबनेल भी जनरेट कराता हूँ इसी से। तो आप देखिए कितना अच्छा वो देता करके, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट ऐसे। जैसे लास्ट क्लास का मैंने अभी थंबनेल जनरेट कराया था इससे, तो आपको दिखा देता हूँ। और ये रोज होता है। तो मैंने कमांड क्या दी है, डिजाइन अ यूट्यूब थंबनेल फॉर अ सेशन ऑन बेसिक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारा कल का सेशन था, बाय सी ममता श्रेष्ठ था, जो कि स्पीकर थी, अंडर द हेड ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग ट्रेनिंग, ठीक है। कीप द बैकग्राउंड एंड थीम अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। मैंने बोला कि इसका बैकग्राउंड थीम टॉपिक के हिसाब से होना चाहिए। इफ पॉसिबल पिक एनी मिनिमलिस्टिक एंड मॉडर्न स्टाइल। तो मैंने बताया भी किस स्टाइल में चाहिए मुझे, तो उसका उसने इस तरह से जनरेट करके दिया। सो ये पूरे सेशन के बारे में था, और सेशन यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। और बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, दो तीन चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। पहला ये कि आपको एआई पे डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है। और जो कि हम बात करते हैं एआई के आने से आपकी जॉब चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको एआई का इस्तेमाल करते और बेहतर बनना है। एक फेमस लाइन इस कम्युनिटी में चलती है एआई की, वो ये है कि एआई आपकी जॉब भले ना ले, लेकिन जो बंदा एआई का यूज़ कर रहा है वो आपकी जॉब ले सकता है। तो इसी का ध्यान रखना है, और ओवर डिपेंडेंसी को कम करना है एआई पे। आपको सीखते रहना है, और अपने अंग्रेजी को या अपने उस प्रोफेशनलिज्म स्ट्रक्चर को, जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, उसको सुधारना है। डिपेंडेंसी नहीं बनानी एआई पे। टाइम कम है तो आप यूज़ कर लीजिए, बेहतर है, लेकिन आपको इवॉल्व होना है, ठीक है। मशीन तो स्मार्ट हो रहा है, लेकिन हमें भी स्मार्ट होती आना है। सो इस पॉइंट के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करता हूँ। ओवर टू यू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। Thank you so much, Abhishek ji, for taking a wonderful, interactive and knowledgeable session. और आई होप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। इवन स्टूडेंट नहीं, सभी लोगों ने एआई का यूज़ करना बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो इट वाज अ ग्रेट सेशन। एंड नाउ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, kindly open your camera so that we can take a beautiful picture for the beautiful memories. डन विक्की जी, अब आगे बढ़ सकते हैं। Yes, so thank you everybody.
And now I request to all students, please drop your attendance in the chat box. So, now I would like to invite. So now I would like to invite our today's leading person, Mr. Subhas Malik sir, for his valuable remarks. Over to you, sir. थैंक यू अभिषेक, बहुत अच्छा सिंपल तरीके से समझाया प्रैक्टिकल वे में। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा कैसे यूज करना है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो भी एआई से हम रिजल्ट लें उसको कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजना है, उसे रिव्यू करना है। वहाँ नीचे नोट लिखा हुआ जाता है एआई कैन मेक मिस्टेक्स, तो गलतियां हो सकती हैं, उसको एक बार चेक करना बहुत जरूरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो इन्होंने बताया आपको कि कौन से मॉडल से कौन से रिजल्ट हमें चाहिए, वो 5-6 मॉडल बताए हैं। वीडियो किससे बनाने हैं, वो किससे बनाना है, रिसर्च बेस्ड चीज़ें किससे लेनी है, नोटबुक एलएम बताया जैसे, तो इसमें बड़ा अच्छा कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह से हमें स्पेसिफिक यूज करने के लिए जो गाइडेंस दिया बहुत अच्छी है, सबके काम आएगी। थैंक यू अभिषेक वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड सी यू टुमारो। कल हमारा प्रोग्राम में एक मैं चेक कर लूँ क्या था, चेक करके नहीं बैठा पहले, जस्ट ए सेकेंड। अच्छा कल, हाँ सैटरडे 9 बजे ही होगा, और 25 तारीख को हाउ टू मैनेज योर इनकम, और सीए ऋषभ जिंदल लेंगे क्लास 9 बजे। ठीक है जी, तो कल दोबारा मिलते हैं फिर और अटेंड करते हैं प्रोग्राम और कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलिए, ऑल द बेस्ट। नाउ वी कैन क्लोज द सेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल रिमार्क्स। और जैसा आपको सर ने बता ही दिया पहले ही कि कल का जो हमारा जो सेशन होने वाला है विच इज़ रिलेटेड टू हाउ टू मैनेज योर इनकम, इसकी क्लास हमारे सीए ऋषभ जिंदल लेने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है और अपने दोस्तों को भी चीज़ें शेयर करनी है। कल का क्लास मतलब जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बाकी अगर आज के सेशन में किसी ने मिस कर दी कोई भी क्लास या कोई भी पॉइंट, तो ये सारी वीडियो जो हमारी होगी वो यूट्यूब पे आ जाएंगी। तो आप उस यूट्यूब पे बार बार उस वीडियो को देखकर दोबारा सीख सकते हैं। जैसे उन्होंने साइट बनाना सिखाया, ऐप बनाना सिखाया, तो आप दोबारा देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अंकुश कुमार फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Vicky sir. Good evening, dear friends. I am Ankush Kumar on behalf of Saksham Rozgar Society. Feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to Advocate Abhishek sir for taking a wonderful session. We look forward to more such classes. A big thank you to all of you, dear students, for your active participation. And since I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, thanks to Mr. Subhash Malik sir for having taken so much interest in the training session. Wishing you all a very good night. Thank you. Over to you, sir. Thank you everyone for taking the class. Now you can leave now. Good night to everybody.